Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So these days I am placing some videos that depicts the state of mind of various candidates, and the purpose of these videos is to help you to come out of this frame of mind. Now there is a famous Hindi song, Pareshan, Pareshan, Pareshan. There is another Hindi song, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, मीनिंग वेयर बाय दैट disturbed, ruined, troubled, worried in English. And another meaning of this song is why everybody is worried, disturbed, ruined, troubled in the city. Now this is happening with everyone. If we look at any human being, you will find that the person is worried or disturbed due to one reason or another. The reasons vary from person to person. But at our very young age, we all are worried about our settlement in life. The moment we pass out or complete our degree, maybe graduate, maybe postgraduate, our immediate concern is to be employed. This employment may be self-employment, it may be employment in government sector or in private sector or in other activities. But to sustain and lead a good life, we need an employment. And naturally, for a youth, for a young person, the immediate cause of worry is not getting the proper employment or not getting the employment at all. So how to tackle this situation? The moment you pass out, the moment you come out of your college or university, or maybe through distance education you have done the degree, you should first make a list of all available opportunities for you. This may be a bank exam, this may be insurance exam, this may be SSC, this may be civil services, this may be job in your field from which you have passed out. So you should make a proper list of opportunities available before you. Then out of that available opportunities, you should figure out those very competitions, those are crackable. Once we say crackable means they should have adequate number of vacancies and the level of exam suits your skills. Because many people, they simply follow the herd mentality. Some other person is appearing in competition, I should also appear. That sometimes takes away your lot of time. Instead of following others, you should make your own SWOT analysis, your strength, your weakness, your opportunities and your threats. So make a list of all available exam and competitions and the jobs and your own capabilities. And then select few competitions during your first year of preparation. And then you should prepare all out for those competitions. Sometime appearing in large number of competitions also takes away your precious time. So you should be choosy. Some people may say, what is the harm, appear in every competition? This can be one thought. But my thought is we must pick those exams where comparatively our chance of selection is high. And that will be determined on the basis of number of vacancies available. Say in a competition there are only 10 vacancies. Naturally the chances of selection of a person is very, very less. But if there are 100 vacancies or 500 vacancies or 1000 vacancies or vacancies are in thousands, the probability increase. So we should be careful in choosing the exams. We should be planned and then we should be systematic to come out of this condition of pareshani, or we can say the condition of helplessness or the troubled conditions. So well planned activities and execution in a planned manner can take you out of this crisis. God bless you all.
अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। एक मशहूर गाना है हिंदी का, परेशान परेशान परेशान, और एक पुराना गाना है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये जो परेशान शब्द है ना, ये हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति वास्तव में परेशान है, मगर उसकी परेशानी का कारण अलग है। किसी को किसी कारण से परेशानी है, किसी को किसी कारण से परेशानी है, पर परेशानियां हैं। इंसान है तो परेशानियां भी हैं। अब जो नवयुवक हैं, जो लोग नई नई ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा परेशानी का सबब क्या है? उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी का कारण है अपने जीवन में सेटल होना, एक नौकरी की तलाश करना या सेल्फ एम्प्लॉयड होना। ये उनके जीवन का एक सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनता है। जब हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं और सामने हमें नौकरी नहीं नज़र आती या हमें नौकरी नहीं मिलती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। और वो परेशानी बढ़ती जाती है जब हमारे आसपास के लोग, जब हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमसे पूछने लगते हैं कि क्या कर रहे हो आजकल, क्या करते हो, कुछ कर रहे हो, कोई नौकरी मिली कि नहीं मिली। तो ये एक तरह से जले पर नमक का काम करती है, और जो हमारी परेशानी है कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। अब इस स्थिति से हमें कैसे निकल सकते हैं? जो आज का नवयुवक है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि सामने जो मौके हैं वो बहुत सीमित हैं और उसको पाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में इस परेशानी से कैसे निकला जाए? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। बैंक एग्ज़ाम है, इंश्योरेंस एग्ज़ाम है, एसएससी है, सिविल सर्विसेज है, या जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें क्या क्या जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब है, पब्लिक सेक्टर में क्या जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी उपलब्ध है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। और फिर अपनी क्षमता को आंकिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और मेरे सामने क्या थ्रेट है। एक एनालिसिस करिए, स्वॉट एनालिसिस करिए, और फिर उसमें से उन एग्ज़ाम्स को चुनिए अगर आप नौकरी की तलाश में हैं जो इजीली क्रैकेबल है। जब हम इजीली क्रैकेबल की बात करते हैं तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, और दूसरा उस एग्ज़ाम के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कितनी है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसीज ही 10 हैं, तो नेचुरल है बहुत कम लोग पास होंगे। और दूसरी जॉब है जिसमें 100 वैकेंसीज हैं, 1000 वैकेंसीज हैं या कई हज़ार वैकेंसीज हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है। तो हमें कुछ एग्ज़ाम ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन अधिक है और क्रैकेबल है, क्योंकि कई लोग इस विषय पर चर्चा करने लगते हैं कौन सी नौकरी अच्छी है, कौन सी बुरी है। जब आदमी अनएम्प्लॉयड है, मेरा ख्याल ये आपका विषय नहीं है कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सी बुरी है। पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे सेटल होना है, मुझे जो जॉब मिल सकती है पहले मुझे वो लेनी है, उसके लिए मुझे प्रयास करना है। तो क्योंकि खाली आपकी चाहत से वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, प्रयास करेंगे मिल सकती है, ड्रीम पूरे हो सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। पर ये जो चीज़ मिल रही है उसको ना लेना और उस चीज़ के पीछे भागना जो नहीं मिल रही है, वो भी एक सही अप्रोच नहीं होती है, और काफ़ी लोग बाद में इस पर रिपेंट करते हैं। तो पहला उन एग्ज़ाम्स की लिस्ट बनाइए जो क्रैकेबल है, फिर उसको कैसे क्रैक करना है उसकी योजना बनाइए, और योजनाबद्ध तरीके से उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसके लिए जाइए। अगर सरकारी नौकरी करनी है उसके लिए योजना बनाइए, प्राइवेट नौकरी करनी है उसके लिए योजना बनाइए। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और फिर चरणबद्ध तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि आप कामयाब हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।